बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरा लेक्चर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। और पहले दो लेक्चर्स से आप ये तो अंदाज़ा कर चुके होंगे कि हमने आज तक क्या पढ़ा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस को हमने बड़ा डिटेल के साथ पढ़ा था, और फिर हमने थोड़ा सा टच दिया था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को, कि हाउ टू मेक partial differential equations from a physical or a geometrical entity. The review of the last lecture is that in the last lecture we studied initial conditions, boundary conditions, first order partial differential equations, formation of first order partial differential equations, and of course we discussed the in detail one example which contains the Dirichlet conditions and Newman conditions as well as the mixed boundary conditions. So the today's topic is, we continue from the last lecture कि हमने जो लास्ट लेक्चर में काम किया था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसमें हमने एक दो एग्जांपल्स भी की थी। अब हम उसी आइडिया को लेते हुए हम एक इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया है वो चेक करेंगे, और हम देखेंगे कि 8 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस 8 से ज़्यादा ज्योमेट्रिकल एंटिटी को एंटरटेन कर रही होती है। उसके बाद फिर हम थोड़े से देखेंगे कि व्हाट इज़ द लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने पहले लेक्चर में बहुत फोर्स किया था इसके ऊपर, लीनियरिटी के ऊपर। सेकेंड लेक्चर में हमने लीनियर बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की थी, और आज हम लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बात करेंगे, और देन द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि ये इनका सोल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करते हो। तो जो फर्स्ट इसका था टॉपिक वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैं जस्ट रिव्यू के लिए आपको बता दूं, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई जी पी एंड क्यू इज इक्वल टू 0। हियर दिस इज एन इक्वेशन in where x, y and z are, x and y are independent variables, where z is a dependent variable and it is dependent on x and y, where p is the derivative of z with respect to x and q is the derivative of z with respect to y, and x and y are independent variables and z is dependent variable. Any relation of these variables is known as the first order partial differential equations. So as an example, we take this geometrical entity x square plus y square plus z minus c whole power square is equal to a square, and we are required to make a partial differential equation which represents this geometrical entity. So here you should know that this equation is in above example represents the set of all spheres whose center lies along the z-axis. So how to make this differential equation? The given equation is, the given geometrical entity is x square plus y square plus z minus c whole square is equal to a square. So here the independent variables are x and y, and z is the dependent variable on x. So what we shall do here, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे with respect to x and with respect to y. लेट्स से मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहता हूँ। तो इक्वेशन 1 का टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x and y. So when with x, so of course this derivative is partial derivative. And what is partial derivative? This is what we discussed in our first lecture in detail. So partial over partial x square plus y square plus z minus c whole square is equal to a square. So applying on independently, this is partial over partial x square
plus partial over partial y, partial over partial x, sorry, y square, and then plus partial over partial x z minus c whole square is equal to partial over partial x a square. So from here you can see that the derivative of h square with respect to x, when the power of h is 2, so it comes 2h plus this term goes to 0. And why this is 0? Because y and x are independent variables. They have no relation with each other. So the derivative of y with respect to x is 0 when there is no relation between these two. Plus here z is dependent on x and y, and when we are interested to take the derivative of z with respect to x, of course then we have this kind of derivatives, and the formula of this derivative is the 2 comes first and z minus c 2 power 2 minus 1, and then again partial over partial x z minus c is equal to, this is 0 since the constant a is a constant here, and constant का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है. सो इसको मैं मज़ीद सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाती है 2h plus 2 into z minus c, and this is again partial z over partial x is equal to 0. And since 2 is not equal to 0, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँ तो h plus z minus c partial z over partial x is equal to 0. और मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये, क्योंकि ये पार्शियल z और पार्शियल x एंड पार्शियल z और पार्शियल y हम बार बार यूज करेंगे, तो हम इसको, हमने कहा था, हमने इसको डिफाइन कर लिया था कि पार्शियल z और पार्शियल x को हम लेट्स से p कहेंगे, और सिमिलरली पार्शियल z और पार्शियल y को हम q कहेंगे, स्मॉल q. So this equation can be written in this form: h plus z minus c p is equal to 0. Let's say this equation number is 2, and we know in the same way we shall take the derivative of equation 1 with respect to y. So when taking derivative of y, when taking the derivative of equation 1 with respect to x, with respect to y, sorry, because now we are interested of the derivative of equation 1 with respect to y, then equation 1 becomes something like that: partial over partial y h square plus, I am doing this again for the purpose of clarity, otherwise this derivative is similar to this because this equation is almost same. Here is h square, here is y square, and the answer must be same. However, I am doing मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप इसको बेहतर अंदाज से समझें कि हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं. प्लस z minus c square is equal to a square. What is partial over partial y? H square plus y square plus, and the equation is something like that: z minus c whole square is equal to a square, and of course the derivative of a square with respect to a square. So here partial over partial y h square plus partial over partial y y square plus partial over partial y z minus c whole square is equal to, the derivative of constant with respect to any variable is 0. Either it is x or either it is y. So now derivative of, because these two are independent, x and y, so derivative of h square with respect to y is again 0,
and plus 2y plus here z is the dependent of x and y, and when I am taking the derivative of y, so it does not grow, ये 0 नहीं हो रहा और ये हमें दे रहा डेरिवेटिव हम इसको लेंगे 2 ऑफ z माइनस सी 2 माइनस 1 पार्शियल और पार्शियल y z minus c is equal to 0, and this is 2y plus 2 into z minus c, and this is nothing but partial z over partial y minus the derivative of constant with respect to y is again 0, and this is equal to 0. So we are left with 2y plus 2 into z minus c partial z over partial y is equal to 0, and I know that partial over partial y को मैंने q का नाम दिया था लास्ट लेक्चर में, और इसको मैं अगेन यूज करूंगा जब मैं सवाल q लिखूंगा अब या इसके बाद, तो उसका मतलब होगा कि partial z over partial y. So since 2 is not equal to 0, so it gives me y plus z minus c partial z over partial y is equal to 0. This is my equation 3, and here if I go back to the side, this is my equation 2. Now come to this next slide, equation 3. So write in are in this way, y plus z minus c q is equal to 0 in a simple way. So this is equation 3 basically. So now here is z minus c, and the last equation 2 is something like that, x plus z minus c p is equal to 0. तो अब इन दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन 2 ही है, ये इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन से मैंने किसी भी अंदाज से कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट को मैं कैसे एलिमिनेट करूँगा, यहाँ से आप देखें इक्वेशन 2 becomes, इक्वेशन 2 implies that z minus c is equal to hp. This is one thing. No, h over p. Yes, h over p and minus h over p. Yes, since यहाँ से आप देखें z minus c इंटू पी इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस एक्स को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँ तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ से z माइनस सी इस p को मैं डिवाइड कर दूँ अगर, तो माइनस एच ओवर p आ जाएगा आंसर जी. सो सिमिलरली इक्वेशन 3 बिकम्स z माइनस सी, आप देखें कि ये माइनस वाई ओवर क्यू बन जाएगा जी, माइनस वाई ओवर क्यू. इस टोटल में इक्वेशन 4 कह दूं और इसको मैं इक्वेशन 5 कह दूं, तो आप देखें कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 में से, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 में से इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं. सो दिस मीन्स द राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है. तो जब सिंस द left hand side of equation 4 and equation 5 are equal, so this implies, ये हमें क्या बता रहा है कि इसका जो what is this implies the right hand sides are also equal, are also equal. So this implies minus h over p is equal to minus y over q, and minus sign cancels each other, and this gives me h over p is equal to y over q, and from here you can see that hq is equal to yp, or if I write in this in one way, then this is something like that, hq minus yp is equal to 0, or you can take minus common, or yp minus
h2 is equal to 0. So this is your first order partial differential equation. So आपको यहाँ पे डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, लेकिन p और q बेसिकली डेरिवेटिव है. इसको मैं इस तरह लिखूँ तो शायद आपको बेहतर अंदाज से समझ आए. डी जेड बाई डी एच माइनस एच डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये भी इक्वेशन ठीक थी. इसमें मैंने जस्ट माइनस कॉमन लेके यहाँ पे बार्ट्स वाली इक्वेशन में आया. इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा. सिर्फ ये हुआ कि this is the partial derivative, sorry, this is the partial derivative, of course this is partial derivative, or I am writing it again, y partial z over partial x minus x partial z over partial y is equal to 0. So I just write this equation again. So the derivative of x मेरी फर्स्ट टर्म में आ गया और डेरिवेटिव ऑफ y मेरी सेकंड टर्म में आ गया, तो ये थोड़ा सा एक सिमेट्री आ गई इसमें. सो दिस इज माय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हमने इस इक्वेशन को एनालाइज किया. अब मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ. लेट्स से वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. दिस इज another geometrical entity. It represents the cones that h square plus y square is equal to z minus c whole square tangent square of alpha, where c and alpha are arbitrary constants. So बट जैसे मैंने बताया कि ये इक्वेशन कोन्स को रिप्रेजेंट करती है, तो ये किस तरह की कोन्स होंगी. दिस इक्वेशन, द इक्वेशन इन अबव एग्जांपल रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर cones whose axis coincides with the line OZ. यानी इन ये जो राइट सर्कुलर कोन्स होंगे जिनकी एक्सिस जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं लाइन OZ के ऊपर, जेड एक्सिस की तरफ. इनका जेड एक्सिस की जो लाइन है OZ उसके साथ इसकी एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं. तो जब हम इसी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं तो हम देखते हैं कि इससे क्या डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं. सो जो हमें ज्योमेट्रिकल एंटिटी दी गई है वो है एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस सी होल स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा, एंड हियर अल्फा एंड सी आर कांस्टेंट्स थी. सो हमने यहाँ से एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फार्मूलेट करनी है, और वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली इस ज्योमेट्रिकल एंटिटी को रिप्रेजेंट भी करेगी. तो हम सेम प्रोसीजर में अगेन करता हूँ ताकि फिर जो मैं आपको असाइनमेंट्स में और जो मैं आपसे क्विज़ेस पूछूं तो आपको कोई परेशानी ना हो. ठीक है. और आपको पता है ना कि आपके 6 लेक्चर्स के बाद एक क्विज होगा और एक असाइनमेंट भी आपको देनी होगी. तो ऑफ कोर्स वो फर्स्ट 6 लेक्चर, इसका मतलब है कि पूरे 6 के 6 लेक्चर्स में वो कोई भी मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ जी. ठीक है. सो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन, लेट्स से दिस इक्वेशन इज, I would like to say again 1. This is second example. Example 2. So h square plus y square is equal to z minus c square tangent square of alpha. So taking derivative of equation 1 with respect to x and y. Since x and y are, why I am taking always derivative with respect to x and y? Because x and y are independent variables, and z is a dependent variable. Okay. So in the case of x, when I am taking with respect to x, so partial over partial x is equal to h square plus y square is equal to partial over partial x z minus c square tangent square of alpha. So here you can see that when I take the derivative, so this gives me, okay, I will take one more step, plus partial over partial x y square is equal to, since this operator is linear
And in the property of linear operators, which we discussed in first lecture, that the constant can come out from that linear operator. So this whole thing is constant. So this is tangent square of alpha partial over partial h z minus c whole square, and this gives me the 2h plus y and x are independent from each other, so this is 0, okay, and this is equal to this tangent square of alpha, and this again gives me 2 into z minus c partial z over partial hg. Yes, or in one more step, z minus c. First I take the put the formula of the derivative, 2 comes here and this is 2 minus 1, and then I am taking the derivative of this argument z minus z, so partial over partial h z minus c, so it gives me nothing but 2h is equal to tangent square of alpha, and 2 comes here, z minus c, and this is nothing but partial z over partial h, because the constant of c with respect to h is 0, and since 2 is not equal to 0, so it gives me h is equal to tangent square of alpha and then z minus c, and this is again p. So and this is one equation, or I would like to from here I can write that this implies tangent square of alpha into z minus c is equal to h over p. Okay, so I would like to say this is equation 2, and similarly when I take the derivative with respect to y, then it gives me partial over partial y h square plus y square is equal to partial over partial y here tangent square of alpha, sorry I write before, z minus c whole square, and this is nothing but the derivative of h with respect to y is 0, and this gives me 2y, and this is equal to constant comes out from this derivative tangent square of alpha then partial over partial y z minus c whole square. So इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे दिस इज 2y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा and then 2 into z minus c and partial over partial y z minus c. This is 2 minus 1. So from here you can see that this is 2y is equal to 2 tangent square of alpha and then z minus c, and this is partial z by partial y, and this is again equals to p q. So this is 2y, 2 is not equal to 0, so we divide by 2, so this vanishes, so y is equal to tangent square of alpha z minus c into q. तो अब यहाँ से देख सकते हो कि टेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इनटू z माइनस c, दिस इज इक्वल टू y ओवर q. इसको मैं इक्वेशन 3 कहता हूँ. आप अगर इक्वेशन 2 को देखो जो मैंने ड्राइव की, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा z माइनस c आया और इज इक्वल टू x ओवर p. तो आप इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड देखो तो वो भी सेम है. सो दिस मीन्स वी कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस. दिस मीन्स हम इसके जो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी. सो फ्रॉम equation 2 and from equation 2 and equation 3 we are in the position to write h over p is equal to y over q. और अगर आप इसको देखो तो ये बन जाएगा yp माइनस एच क्यू इज इक्वल टू 0. सो अभी भी आपने जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है, अगर आप अपने माइंड पर 10 मिनट रिवाइंड करें तो आपको लगेगा कि इसी तरह की इक्वेशन हमने
जस्ट 10 मिनट्स बिफोर जो हमने एग्जांपल 1 किया है, इसमें भी हमने यही इक्वेशन डिराइव हुई थी हमारे पास। इसको मैं लिखूँ थोड़ी एक्सप्लिसिट फॉर्म में, y पार्शियल z बाई पार्शियल h माइनस h पार्शियल z बाई पार्शियल y इज इक्वल टू 0। सो मैं आपको अगर एग्जांपल 1 की तरफ लेके जाऊं तो आप ये देखें कि एग्जांपल 1 में ये सोल्यूशन ऑफ एग्जांपल 1 है, तो y पार्शियल z और पार्शियल h माइनस h पार्शियल z और पार्शियल y इज इक्वल टू 0 और yp माइनस h2 इज इक्वल टू 0। सो हमें ऐसा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल एंटिटीज ली थी, लेकिन हमारे पास उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ही डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको भी हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि हमने जो दो इक्वेशंस को डिराइव किया, जो दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल एंटिटीज को डिराइव किया, तो हमारे पास एक ही डिफरेंशियल इक्वेशंस आई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पहली एग्जांपल में सॉल्व किया था कि ऐसी हमने इक्वेशन उठाई थी जो आल स्फीयर्स को रिप्रेजेंट करती है, जिनका सेंटर जो है वो लाई अलोंग द जेड एक्सिस जी। और उसके बाद हमने दूसरी एग्जांपल उठाई जिसकी जो रिप्रेजेंट करती है कि ऑल राइट सर्कुलर कोन्स हुज एक्सिस कोइंसाइड्स विद द लाइन ओ जेड। तो ऐसा जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास जो इनके सोल्यूशन आए वो सेम आए, वाई पी माइनस एच क्यू इज इक्वल टू 0 एंड वाई पी माइनस एच क्यू इज इक्वल टू 0, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिराइव किए। तो आप ये देखो कि ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या बहुत सारी जो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल एंटिटीज हैं, क्या उन सब के लिए क्या एक ही इक्वेशन होगी? यकीनन ऐसा नहीं है, यकीनन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या बात है? इसका मतलब है कि इन ज्योमेट्रिकल एंटिटीज में कुछ चीज कॉमन है, और क्या चीज कॉमन है वो है, लेट्स से we take this, now a question arises that why these two differential geometrical entities have the same partial differential equation, so the spheres and the cones क्या कॉमन है इनमें? स्फीयर्स का जो सेंटर है वो z एक्सिस के ऊपर है, और कोन्स का जो एक्सिस है वो कोइंसाइड्स कर रहा है ओ जेड लाइन के साथ, ठीक है? तो ये इनके दरमियान कॉमन है। तो और इनको हम क्या कहते हैं बेसिकली? द स्फीयर्स एंड द कोन्स आर बेसिकली सर्फेसेस ऑफ रेवोल्यूशन which have the line OZ as axis of symmetry. Now what is surfaces of revolution? Calculus BSc में अगर आपने डेफिनेटली आपने कैलकुलस डिटेल से पढ़ी थी, उसमें आपने देखा होगा कि सर्फेसेस ऑफ रेवोल्यूशन क्या होती है। मैं यहाँ पे उसका थोड़ा सा आपको टच देता हूँ कि व्हाट इज सर्फेस ऑफ रेवोल्यूशन। कि अ सर्फेस ऑफ रेवोल्यूशन इज अ सर्फेस इन यूक्लिडियन स्पेस R1, R2, R3, something like that, space created by rotating a curve around a straight line in its plane, the axis. तो ये जो दोनों का जो एक्सिस है वो सेम है, तो इनका जो ये दोनों जो बिलोंग करती हैं वो बिलोंग करती हैं surface of revolution series. The spheres and cones are basically surfaces of revolution which has the line OZ as axis of symmetry. So ये तो हमने spheres और cones की ली। इससे अलावा अगर कोई और ज्योमेट्रिकल एंटिटी हो जो वो भी सेम एक्सिस के अराउंड वो उसको हम रोटेट करें तो वो कर्व बनाए, तो वो उसको फिर हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि all surface of revolution with the property that they have the line OZ as axis of symmetry are characterized by an equation of the form Z is equal to f of h square plus y square where the function f is arbitrary. आप देखेंगे इससे जब हमने कोन्स को देखा था तो हमारे पास जो फंक्शन था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो था ही था, लेकिन उसके अलावा z माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था। और देन जब हम कोण में आए तो उसमें टेन स्क्वायर ऑफ अल्फा जो रेन कांस्टेंट था वो इन्वॉल्व हो रहा था। सो द बेसिक थिंग इज कि आपका जो फंक्शन है वो डिपेंड करना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी उसको हम कहेंगे
वो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की इक्वेशन हो रही। और इस सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ कि इससे प्रॉपर्टी ये हो रही कि वो ओ जेड लाइन उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो रहा, ओ जेड लाइन यानी जेड एक्सिस की जो लाइन हो रही वो उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो रही। तो मैं ज़रा इस इक्वेशन का अगेन सोल्यूशन देखना चाहूँगा, इस इक्वेशन को, सॉरी नॉट सोल्यूशन, इस इक्वेशन को डिराइव करना चाहूँगा कि ये जो जनरल इक्वेशन हमने लिखी है इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनती है। हमारे पास जो इक्वेशन थी z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं इस इक्वेशन की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखना चाहूँगा और इसका जो क्राइटेरिया है या इसका जो मेथोडोलॉजी है इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की वो सेम है कि मैं इस इक्वेशन, लेट्स से मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ, तो इस इक्वेशन 1 को मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। सो व्हेन आई एम गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, दिस गिव्स मी partial z by partial x is equal to partial f by partial z partial x into x square plus y square, and of course this is a function of x square and y square. So when I take this function, the derivative of this function, so it gives me f dash of x square plus y square, and this is again derivative of partial x, and we discussed this thing in first lecture in detail, that how we take the derivative of these kind of things. This is x square plus y square, and what is this x square plus y square, and this is nothing but 2x, and this is partial z by partial xc, and I am again इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2f dash of x square plus y square, of course x भी है, is equal to, this is something like p, इसको मैंने p कहा हुआ है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2f dash of x square plus y square is equal to p by xc। ये क्वेश्चन आ रही। अब जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया पार्शियल z बाई पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल y f ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू f dash of x square plus y square and partial of partial y into x square plus y square. So it gives me nothing but the derivative, I am writing again, the derivative of x square with respect to y is 0 plus 2y, and on simplification this is 2y f dash of x square plus y square, और अगर आप मुझे अलाउड करो तो इसको मैं q भी कहता होता हूँ जी, तो इसको मैं यहाँ पे q लिख लूँ। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं बजाय अगली पेज पे जाने के मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेता हूँ कि 2f dash of यहाँ से 2f dash of x square plus y square is equal to q over y. So ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ रही। आप देखो कि इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो ऑफ कोर्स देन इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे जी। तो p ओवर h, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एच क्यू इज इक्वल टू पी वाई, and this is h2 minus py is equal to 0. Again the same differential equation. So h2, this is again we have h2 minus py is equal to 0. You can see that the corresponding differential equation is yp minus h2 is equal to 0. So आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिकल एंटिटीज़ को इंटरटेन कर सकती है अगर उन ज्योमेट्रिकल एंटिटीज में कोई चीज कॉमन हो तब। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो हमने पिछले टॉपिक में ये देखा कि
हम डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, उनकी उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। मैंने पिछले लेक्चर में भी 2-3 एग्जांपल्स ट्राई थी और आज भी मैंने 2-3 एग्जांपल्स ट्राई, और द क्राइटेरिया जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि आपने उस इस अंदाज से देखना है। अब हम चलते हैं जो बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है लास्ट लेक्चर का भी शायद आधा और आज का, कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑफ कोर्स वी आर डिस्कसिंग येट ओनली ऑन फर्स्ट ऑर्डर partial differential equation. So what is linear first order partial differential equation? An equation of the form PQ plus QQ is equal to R, and where P, Q and R are given functions of x, y and z. Look, the capital P, the capital Q and the capital R are given functions of, they are functions of x, y and z which do not involve P and Q. यानी P, Q, capital P, capital Q और capital R P के ऊपर डिपेंड नहीं करने चाहिए, स्मॉल p के ऊपर, और स्मॉल q के ऊपर भी डिपेंड नहीं करने चाहिए। और अगर आप इसको, वो जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, अगर आप उसके साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि इसको जस्ट आप एक्सपेंड करके लिखो तो ये लीनियर क्राइटेरिया आपको वहां से भी और ये भी एक ही चीज होती है जी, ठीक है। सो P इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल x एंड Q इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल y इज नाउन एज, ऑफ कोर्स हियर Q इज मिसिंग, एंड इज नाउन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जी। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है ओनली ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस and the corresponding geometrical entities and how we formulate the partial differential equations from those geometrical entities, और आज हम solution of a partial differential equations को भी देखेंगे। So the next topic is, of course this equation is known as the Lagrange equation. So the next topic is the solution of linear first order partial differential equations. So इस टॉपिक को हम सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे हम एक आधी एग्जाम्पल आज करेंगे और बाकी इसको फुली डिटेल के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको हम डिस्कस करेंगे। सो द जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ पे नजर आ रही है, जो लैग्रांज इक्वेशन है, कैपिटल P स्मॉल p एंड कैपिटल Q एंड स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल R कैन बी रिटन इन द फॉर्म f ऑफ uv इज इक्वल टू 0। जस्ट रिकॉल करें कि मैं ये कह रहा था पहले कि आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ uv इज इक्वल टू 0, जो कल के लेक्चर में हमने इस फंक्शन से हमने PDEs को फॉर्मुलेट करना सीखा था जी। अब PDE है तो हमने इस फंक्शन तक पहुंचना है, यानी एक किस्म का इनवर्स रिलेशन है, वेयर f इज an arbitrary function, capital F is an arbitrary function, and u of x, y, z, u is dependent on x, y and z is equal to capital C1 is a constant and v of x, y, z is equal to capital C2। और of course geometrically ये क्या है, ये कोई कर्व्स बनाती हैं, इनको हम u of x, y, z is equal to C1 and v of x, y, z is equal to C2 कर्व्स में form a solution of the equation dx by capital P of x, y, z plus d by our q x, y, z is equal to dz over r x, y, z। So the solution क्या होगा, solution ये होगा जी f of u v is equal to 0। हम इस तरह की इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे कि what is p and what is q, और इस ये इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। Of course here is plus is this is typing mistake, so this is equal sign here, it is not plus sign here, this is equal sign dx by p of x, y, z is equal to dy over q x, y, z is equal to dz over r x, y, z, so it must be equal sign here। So हम इस थ्योरम को मद्देनजर रखते हुए हम इन जो दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। सो द इक्वेशन इज, द फर्स्ट इक्वेशन इज, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन इज y स्क्वायर p
माइनस एच वाई क्यू इज इक्वल टू एच इंटू z माइनस 2y। सो आप यहाँ से देखें कि जो क्राइटेरिया था, जो जनरल इक्वेशन, जो थ्योरम हमने पढ़ा है, वो ये कह रहा था कि अगर आपके पास इक्वेशन हो इस तरह की प्लस q इज इक्वल टू r, तो आपका जो जनरल सोल्यूशन होगा f ऑफ u v, इसको हम जनरल सोल्यूशन कहेंगे कब, जब आप जनरल सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा, या डी एच ओवर कैपिटल P, डी वाई ओवर कैपिटल Q एंड डी Z ओवर कैपिटल R। सो इसकी जो डिटेल्स हैं, ज़्यादा डिटेल जो अच्छे जो आप में से ज़्यादा मैथमेटिक्स को देखना चाहता है या डिटेल इसको देखना चाहता है, कि इस थ्योरम का प्रूफ संकारा राव की बुक में पढ़ा हुआ है और वो मैं आपको एज ए हैंड आउट दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं वहाँ से। अदरवाइज आप उसको खुद भी डिराइव कर सकते हैं, तो इतना इशू नहीं है उसमें। सो उसका प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग देगा कि हो क्या रहा है बिहाइंड दीज ऑल दीज डिस्कशन जी। सो हमने ये इक्वेशन बनानी है, डी एच ओवर पी इज इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू इज इक्वल टू डी जी ओवर आर। अब यहाँ पे देखें कि व्हाट इज P is equal to y square, Q is equal to minus xy and R is equal to h into z minus 2y जी। आप ये देखें कि ये P सेम रहा, इसको जस्ट इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया इस इक्वेशन के साथ, और P और Q और R की वैल्यूज मैंने ले ली, P, Q और R की वैल्यूज मैंने ले ली। सो अब यहाँ से देखें आप कि इक्वेशन क्या बनती है, डी एक्स बाई, आपने ऑफकोर्स आपको ऑब्जेक्टिव क्या है कि U और V फाइंड आउट करने हैं, और आपने ये देखा कि U ऑफ जो थ्योरम में हमने देखा था कि H Y Z is equal to C1 and V of H Y Z is equal to C2। सो आपके पास ये जो रिलेशन आएगा, आप इसको कहेंगे दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, f of u v is equal to 0। सो ये C1 और C2 कहाँ से आएंगे? बेसिकली हम इनमें से ये तीन हमारे पास टर्म्स है, हम इनमें से कोई दो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और फिर दूसरी को सॉल्व करेंगे तो फिर वहाँ से ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो जो दो ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रेशन होंगे हम उनको एक को C1 कह लेंगे और एक को C2 कह लेंगे, और C1 मेरा जो है U के इक्वल होगा और C2 जो है वो मेरा V के इक्वल होगा। सो मैं यहाँ पे डी एक्स ओवर P, ये इक्वेशन है, इज इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू एंड दिस इज इक्वल टू डी जेड ओवर आर। सो डी एक्स ओवर पी इज वाई स्क्वायर एंड डी वाई ओवर क्यू इज इक्वल टू माइनस एच वाई एंड दिस इज डी जेड ओवर एच इंटू जेड माइनस 2y। सो मैं सबसे पहले इन दो को सॉल्व करता हूँ। अच्छा, इसमें ये बात याद रखें कि हमने इससे कोई भी फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी अंदाज से, जस्ट हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर नज़र रखनी है, और इसकी फॉर्मेशन हम कैसे भी कर सकते हैं। जो हमने रूल्स पढ़े बेसिक अलजेब्रा के वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने 7वीं 8वीं में शायद हमने पढ़े थे। सो हम क्या करते हैं कि मैं इन दो टर्म्स को लेता हूँ कि लेट, एंड ऑफ कोर्स ये इक्वल हैं तो ये दो भी आपस में इक्वल हैं, डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई ओवर माइनस एच वाई, और जब इस y को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट गिव्स मी डी एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई ओवर एक्स। और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाता है एच डी एक्स
इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई, और इस ऑर्डर में ए की साइड पे ले जाऊं तो दिस इज नथिंग बट एच डी एच प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ अब मैं इसे इंटीग्रेट करने लग रहा हूं। इंटीग्रेशन गिव्स मी एच डी एच प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, एंड जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये एच स्क्वायर प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज c. नाउ c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं इस इक्वेशन को मैं, अगर आप इफ यू अलाउ मी, देन मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, और ये जो था ये v था जी बेसिकली, जो कैंसिल हो रहा है उससे, तो अब मैं इसको लिखना चाहूँगा तो ये बनेगा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, और मैं 2c को, c is a constant, 2 is a constant, so the multiplication of 2c is again a constant, so let's say this is c1, so मैं इसको h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1 कह देता हूँ, और ये c1 जो है वो मेरा u होगा, ठीक है। और सिमिलरली अब मैं u2 लेता हूँ, तो अब मैं कोई ऐसी इक्वेशंस लूँगा, अब मैं ऐसा टर्म लूँगा कि उसको मैं जल्द अज जल्द सिंप्लीफाई कर सकूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा आसान ये, अगर आप और से देखें, ये इसमें कोई ऐसी पीछे लॉजिक नहीं है इसकी, इन द सेंस कि आपको रटा मारना पड़े या कुछ इस तरह। आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस टर्म को लेता हूँ, इन दो टर्म्स को लेता हूँ, तो जो मेरा h है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मैं y के साथ बचूंगा, और यहाँ पे मैं z और y के साथ बचूंगा, तो मेरा h कहीं भी नहीं होगा। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर मेरा h आएगा और फिर वो उसको मैं ट्रीट करूंगा, तो वो एक काफ़ी एक मुझे उसकी h की वैल्यू फिर यहाँ से लेनी पड़ेगी, उसको मैं फिर c1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, और वो फिर मेरे लिए एक डिफिकल्ट इंटेग्रल बनता जाएगा। कर तो मैं सकता हूँ, आई कैन डू दैट, लेकिन वो बहुत अपने आप को उसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइडिया इज कि मैं इसको इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों टर्म्स को लेता हूँ, तो लेट डी वाई आवर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड आवर एक्स इंटू जेड माइनस 2y, दिस इज z. So this simplifies on y is equal to dz over z minus 2y जी। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो z minus 2y, this is dy, this is equal to y dz, तो z dy minus 2y dy इज इक्वल टू वाई डी जेड जी। ये मेरे पास आ गया इसकी फॉर्मेशन जी। अब मैं इसको, अगर आप मुझे अलाउ करो, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ। हियर इट, मैंने माइनस साइन कहीं पे मिस किया है, एंड हियर इज द माइनस साइन, दिस माइनस साइन इज हियर, सो ये माइनस साइन जब यहाँ पे होगा तो ये माइनस साइन होगा, and this minus is here and this is plus here, so this is equal to 2y dy is equal to y dz plus z dy। इसी इक्वेशन को मैं ज़हन में रखते हुए, या इस इक्वेशन को आप देखें, मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ, अगेन मैं इक्वेशन को लिखता हूँ, और कीप इन माइंड आवर c we achieved, we calculated c1, so the question is only to calculate c2। so यहाँ पे जो इक्वेशन थी मेरी 2y dy is equal to y dz plus z dy, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ये इक्वेशन थी, yes, y dz plus z dy and 2y dy जी। so
अब आप जो बेसिक कैलकुलस है उसमें जब हम डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं तो उसमें ये देखें कि अगर डेरिवेटिव ऑफ यू वी जो होता है, डेरिवेटिव ऑफ यू वी यू डब्ल्यू कह लें हम, डेरिवेटिव ऑफ यू डब्ल्यू इज नथिंग बट यू डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डेरिवेटिव ऑफ यू। सो ये चीज देखें कि y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ z प्लस z एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ पे मैं जस्ट वो फार्मूला अप्लाई करूंगा कि दिस इज बेसिकली डी जेड वाई या वाई जेड आप लिख लें, तो 2y dy डी। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, इस चीज़ में इंटीग्रेशन लूंगा तो इट इज समथिंग लाइक इंटीग्रेशन गिव्स मी y square डी ऑफ जेड वाई और वाई जेड की बात है। तो या आप देखें कि ये जो चीज़ है ये वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेट्स से दैट इज c इज इक्वल टू वाई जेड। ये सिंपली वाई जेड क्योंकि डेरिवेटिव ये एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और हमारे पास वाई जी बचेगा। तो इक्वेशन इज वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू वाई जी एंड लेट्स से अब मेरा क्योंकि कोई और कांस्टेंट नहीं है तो मैं इसी को C2 कह देता हूँ जी। मेरे लिए कोई ऐसा इशू नहीं है कि कांस्टेंट के नाम चेंज कर लूँ, इसको मैं C2 कह देता हूँ। तो C2 इज नथिंग बट वाई जी माइनस वाई स्क्वायर। सो हमारे पास C1 हमने कैलकुलेट किया था लास्ट स्लाइड में, दैट इज एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, और C2 ये था। तो हमारा जो U है U ऑफ एक्स वाई जी को मैंने कहा था कि वो C1 है। तो आप इन दोनों को देखें, इसको और इसको देखें, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ u ऑफ एक्स वाई एंड z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड सिमिलरली मैंने देखा था कि v ऑफ एक्स वाई z बाई थ्योरम दिस इज इक्वल टू C2। जब एक्चुअली वो थ्योरम मैंने इसलिए छोड़ा है कि आपको वो थ्योरम खुद जब आप उसको सॉल्व करोगे, मैं हैंड आउट्स उसके दूंगा आपको, जब आप उसको खुद सॉल्व करोगे, खुद आप उसको प्रूव करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम को प्रूफ ना करने का बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि आप यू कैन प्रूव बाय योर सेल्फ। मैं जो हैंड आउट्स आपको दे रहा हूँ उसमें वो थ्योरम प्रूव हुआ है। ठीक है, सो बाय थ्योरम दिस v ऑफ एक्स वाई जी इज C2। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से मैं लिख सकता हूँ कि v ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर। और अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये कर दे, ये कोई ऐसी लाजमी नहीं है जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कर दें कि इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि 2y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई जी प्लस सी, ट्रांसफर इंटीग्रेशन उस तरफ कर चला गया, तो c की वैल्यू जो हो रही है वो वाई स्क्वायर माइनस वाई जी हो जाएगा। यहाँ पे वाई जी माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस वाई जी हो गया, ये माइनस का डिफरेंस आ गया। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, चाहे आपका वो आपका उस तरह से सॉल्व कर लो, चाहे आप इस तरह से सॉल्व कर लो। बहरहाल ये आपके पास u एंड v आ गया। तो बाय थ्योरम हमने ये कहा था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका सोल्यूशन होगा ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो f is u is x square plus y square and yz minus y square is equal to 0. So this is the solution of the partial differential equation, or we can say that this geometrical entity is represented by that partial differential equation. Our partial differential equation is represented by this equation. So this is our answer. The example 2 is y plus
ZH P minus H plus YZ Q is equal to H square minus Y square G. So in this example, the basic criteria is same which we have done in the previous example, that for the solution of this partial differential equation, this is P, of course the small p, the solution of this first order partial differential equation is by theorem f of u v is equal to 0, where u is equal to u is dependent on x y z is equal to c1 and v of x y z is equal to c2. So how to calculate c1 and c2? For this we need to calculate this equation dy over d q and dz over rg. So in this criteria, when here the p is y plus 2h, q जो है हमारे पास वो माइनस x प्लस वाई जी और r जो है वो हमारे पास h स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है जी. तो ये जो फॉर्म हो रही है v u और v या c1 और c2, इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने से या सॉल्व करने से हमारे पास c1 एंड c2 आएंगे जी. तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी? तो dh ओवर, लेट्स से dh ओवर y प्लस 2h is equal to dy over minus h plus yz is equal to dz over h square minus y square. तो अब इशू ये है इसको सॉल्व करने में, अब अगर मैं ये दोनों टर्म्स लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये z आ जाता है मेरे पास, और ऑफ कोर्स यहाँ पे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ z वो हमारे लिए एक चैलेंज बनेगा. और जब हम z और y के रेफरेंस से करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x हमारे लिए चैलेंज बनेगा. तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें, ऐसा कॉम्बिनेशन हम बनाएं कि जिसकी मदद से हम जब भी डिफरेंशिएट करें तो उसका इंटीग्रल हमारे पास मौजूद हो. अगर मैं इस इक्वेशन को h के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स से h dh ओवर h y प्लस 2zh स्क्वायर, और इसको मैं y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा मेरा माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर z, this is y square z, this is h, this is. so आप देखो कि मेरे पास जो इक्वेशन आएगी, अगर मैं इनको न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करूं तो मेरे पास h dh प्लस y dy डिवाइडेड बाय hy प्लस zh स्क्वायर माइनस hy माइनस y स्क्वायर z. प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं. हम बेसिकली कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमारे पास जब हम उसे इंटीग्रेट करें तो हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन मौजूद हो. तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट डी जेड बाई, इस कॉम्बिनेशन को हम इस स्टेट को रखते हैं एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर आप इसको देखो तो ये जो टर्म है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रही, और एच डी एच प्लस वाई डी वाई दिस इज इक्वल टू जेड इंटू एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड ओवर एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और आप देखो कि ये एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे इस क्राइटेरिया को फॉलो करने से. इवन अगर ना भी होते तो अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव या इसको हम कुछ ना कुछ इसको मैनिपुलेट कर लेते और आंसर ले आते, लेकिन अब हमारे पास डी एच भी है डी वाई भी है, सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन जी. सो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ. एच इसको इस नीचे वाली टर्म को इधर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एच डी एच प्लस वाई डी वाई is equal to nothing but z into h square minus y square dz over
एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी, कैंसिल आउट हो रहे, एंड एच डी एच प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हर इक्वेशन के लिए डिफरेंट हो रहा। यहाँ पे मैंने देखे इस टर्म को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इसको वाई के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फिर इनको ऐड किया। ये जो मैं कर रहा हूँ एडिशन, ये सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रख के कर रहा हूँ, तो फिर मेरे पास ये चीज जो कॉमन आ रही है इसको कैंसिल आउट कर दे रही है और आई एम लेफ्ट विद दिस थिंग। अब इसकी इंटीग्रेशन करना मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना मुश्किल काम हो। इसकी जो इंटीग्रेशन होगी एच डी एक्स प्लस वाई डी वाई इंटू जेड डी जेड जी। तो दिस इज नथिंग बट एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to z square. Oh, this is 2 here, this is 2 here, this is 2 here plus c. Let's say this is c. 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो h square plus y square और z square को मैं इधर ले आऊँ तो z square is equal to c1. So this is my c1 which is nothing but equals to u. So this is again so I obtained u. Now I will write the equation here again. dx over y plus zx is equal to dy over minus x plus yz is equal to dz over x square minus y square जी। ये हो गया। अब पहले मैंने क्या किया था कि पहले मैंने इसको h से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया था और इसको y से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इनको ऐड कर लिया था। अब मैं क्राइटेरिया चेंज करते हुए y से मल्टीप्लाई डिवाइड इसको करता हूँ, इसको मैं y से करता हूँ और इसको मैं h से करता हूँ। द रीजन बिहाइंड दिस व्हाई आई एम डूइंग दिस, लुक इन द एक्सप्रेशन हियर। यहाँ पे प्लस का जेड एच है या एच जेड है, जब y मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बन जाएगी एच वाई जी, और जब यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बन जाएगी माइनस एच वाई जी। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो और इनको मैं ऐड करता हूँ वाई डी एच और वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस जेड एच वाई, और इसको मैं ऐड करता हूँ प्लस एच डी वाई, ऑफकोर्स माइनस होगा तो माइनस एच स्क्वायर माइनस एच वाई एंड जी, और राइट हैंड साइड पे मैं यही टर्म रखता हूँ डी जेड ओवर एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देखो कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल आउट हो रहे, तो आई एम लेफ्ट विद वाई डी एच प्लस एच डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड ओवर एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखो लकीली यहाँ पे मेरे पास एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है, तो ये दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे विद अ माइनस साइन जी। मैं माइनस कॉमन लेके लिखता हूँ एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड ओवर एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म इसको कैंसिल आउट करेगी और आपके पास बचेगा वाई डी एच प्लस एच डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0। इसको डी जेड को मैं इस तरफ ले आया तो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रेट करूंगा मैं, इंटीग्रेशन यील्ड्स वाई डी एच प्लस एच डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 प्लस द इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इज जेड इज इक्वल टू सी। 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पे इसको सेकंड एंटिटी को लिखता हूँ, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू 2c और 2c को मैं c2 कह दूं तो मेरे पास इक्वेशन हो रही एच स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू c2 और c1 मैंने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया था, मैं वापस जाता हूँ। एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c1, तो जो c1 है मेरा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया जी। सो c1 बेसिकली मेरा u है और c2 मेरा v है, तो u ऑफ एक्स वाई जी ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड v ऑफ
एक्स वाई जी आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z। तो जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो मैंने पहले ही लिखा था कि एफ ऑफ यू इज वी इज इक्वल टू 0, सो इट इज समथिंग लाइक दैट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू 0। सो ये आज हमने दो डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन निकाला और ये ऑफ कोर्स ये किसी न किसी टर्म्स को रिप्रेजेंट करती हैं। सो आज के लिए आपको होमवर्क ये है कि आपने इन दोनों के जो सोल्यूशन है इनको दोबारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी से रिवर्स प्रोसेस करना है। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क, नॉट द असाइनमेंट। असाइनमेंट आपको आफ्टर 6 वीक मिलेगी। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ पीडीईज को देखा और देन हमने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को डिस्कस किया और एग्जांपल में हमने दो डिफरेंशियल इक्वेशंस उठाई। सो द समरी ऑफ माय टुडेज लेक्चर इज we first discussed the first order partial differential equation, then the linear first order partial differential equation, then the solution of linear first order partial differential equations. In the first section and in the third section we discussed in detail with some examples. मैंने पहले सेक्शन में भी दो एग्जांपल्स ली और मैंने ये देखा कि मेरे कोई भी दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल एंटिटीज के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट कि उन ज्योमेट्रिकल एंटिटीज में कोई एरिया कॉमन हो। सिमिलरली देन मैंने पार्शियल डिफरेंशियल दो एग्जांपल्स ली आज हमने की कि जिसमें हमने दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने डिटेल से डिस्कस किया और उनके सॉल्यूशन को डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल हम अगेन कुछ एग्जांपल्स लेंगे, लीनियर कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस उठाएंगे जो फर्स्ट ऑर्डर पीडीईज होंगी और उनके सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड होंगे। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़, और आज जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।